Today we are going to discuss about reverse mortgage scheme, who is eligible for reverse mortgage scheme and what is the difference between normal loan and reverse mortgage loan. So that we are going to discuss in this video. Watch till end so that you will get all ideas about reverse mortgage scheme, and at the end of the video I will ask certain MCQ. You try to give those answer of those question on the basis of the video so that your conceptual clarity gets stronger. Now, before I start my video, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel for more videos related to the different topics of GST, then skill development, then tally and text planning. You can also visit my playlist for it. Now let's begin with the video. What is mortgage home loan? Mortgage home loan means, say for example, you are a person now. What you are doing? You want to purchase one house. So what you will do? You will take a loan for it, and what you will do after taking loan? You will pay certain EMI to bank. Now, at this position, ownership of your house is with the bank. अभी ये जो ownership है वो बैंक के पास है. So after completing all the EMI, ownership from bank of your house is transferred to you. So this is the normal mortgage home loan. In this home loan, this kind of situation will occur. But now exactly opposite things happens to reverse mortgage loan. In that loan, what will happen? यहाँ पे ओनरशिप आपके पास है, बट आप क्या करते हो? ये हाउस को आप बैंक को दे रहे हो. जैसे जैसे बैंक आपको मंथली पेमेंट करती जाएगी, उसका ओनरशिप आपसे ट्रांसफर होके बैंक के पास चला जाता है. सो रिवर्स मॉर्गेज लोन में क्या होता है कि आपको अपना हाउस बैंक को देके आप उसके पास से पैसा ले सकते हो एट द टाइम ऑफ पोस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ. ये एक बहुत अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट का, जिससे जो ओल्ड एज पीपल है दे गेट मनी फॉर देयर नीड इफ दे डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम. तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये सोचा हुआ है कि आप अपना हाउस को बैंक को दे के भी ये अपना डेली जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसको फुलफिल कर सकते हो. तो इस तरह से यहाँ पे ओनरशिप आपके पास होता है हाउस का, वो ओनरशिप धीरे धीरे बैंक के पास चला जाता है और बैंक आपको उसके बदले में मंथली पेमेंट करती है. तो इस तरह से सर्कल एग्जैक्टली अपोजिट होता है. वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में ए ओल्ड एज पीपल को इफ दे नीड मनी, व्हाट दे कैन डू? They can give house to the bank, and what bank will do? Bank will make monthly payment for it, and gradually the ownership of the house will transfer from person individual to the bank. Now this is the difference, basic difference between normal loan, traditional loan system and reverse mortgage loan system. After bank gets ownership, what bank will do? बैंक ये बोल रही है कि आपके पेरेंट्स को हमने जो भी अमाउंट पे किया है विद इंटरेस्ट वो हमें पे ऑफ कीजिए और ये हाउस का ओनरशिप हमें दे दीजिए. ये एक पहला ऑप्शन है जो बैंक ऑफर करती है लीगल हेयर्स को. तो ये लीगल हेयर्स वो अमाउंट पे करके ये ओनरशिप ले सकती है. अमाउंट विद इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. दूसरा ऑप्शन उसके ऐसा है कि बैंक क्या कर सकती है, ये हाउस को सेल भी कर सकती है. say for example house is sold for 1 crore and bank has paid 70 lakh to the owner of the house. What bank will do? Bank will keep 70 lakh with them and remaining amount he can give to their legal heirs. So this way bank have a two option. First option is they can give a option to their legal heirs that you can pay off our amount and take ownership of your house, or we can sell this house and whatever amount that we have to collect we will collect, and remaining amount we will
give to you. So these two options were offered by bank. So this is about a reverse mortgage loan. Purpose of reverse mortgage scheme: first purpose is it will become supplement income for regular expense and medical emergencies. ये आपका एक सप्लीमेंट इनकम बन जाता है, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, एंड इट विल आल्सो हेल्प यू फॉर मेडिकल इमरजेंसीज. तो ये सबसे पहला उसका पर्पस है, क्योंकि उस टाइम पे आपका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, मेडिकल इमरजेंसीज ज्यादा होती है, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होता है, तो इस टाइम पे इस तरह का इनकम बहुत हेल्पफुल रहता है. दूसरा है अपग्रेड, रिनोवेट एंड मेंटेन द हाउस एक्सेट्रा. अगर आपको हाउस को अपग्रेड करना है, रिनोवेट करना है, मेंटेन करना है, देन फॉर दिस पर्पस आल्सो दिस रिवर्स मॉर्गेज स्कीम इज वेरी यूजफुल. नॉट अवेलेबल फॉर बिजनेस, ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन एक्सेट्रा. ये कोई भी तरह का बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, गैम्बलिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए यूजफुल नहीं है. ये याद रखना. आप इससे सट्टाबाजी, बिजनेस पर्पस के लिए या व्यापार के लिए यूज नहीं कर सकते. एलिजिबिलिटी क्या है इसका? इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी है, अगर सिंगल बोरोवर है तो 60 इयर्स होना चाहिए. अगर जॉइंट बोरोवर्स है तो जो स्पाउस का एज है वो 55 इयर्स या उससे ज्यादा होना चाहिए. इन कई केसों में ये 58 इयर्स भी होता है. देन हाउस मस्ट बी सेल्फ एक्वायर्ड एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड. हाउस आपका सेल्फ एक्वायर्ड एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए, तो ही आप ये लोन के लिए एलिजिबल हो. अगर आपने ये प्रॉपर्टी टेनेंट को दिया है रेंटल बेसिस पे, तो आप एलिजिबल नहीं बनते. अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई और रहता है, देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस लोन. The residential property should be free from any encumbrances. Now encumbrance means what? बोझा. ये प्रॉपर्टी जो है वो बोझा मुक्त होनी चाहिए. बोझा मुक्त मीन्स इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कोई लोन होना नहीं चाहिए, इस प्रॉपर्टी पे किसी का क्लेम नहीं होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस बोल सकते हैं. The residual life of the property should be at least 20 years. ये प्रॉपर्टी का रेसिडुअल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी मिनिमम 20 इयर्स होना चाहिए, या उससे ज्यादा होता है तो चलता है, बट मिनिमम तो 20 इयर्स होना चाहिए. इसीलिए लास्ट पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रेसिडुअल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी एटलीस्ट 20 इयर्स. फीचर्स: लोन टेन्योर, मैक्सिमम टेन्योर अलाउड इज 20 इयर्स. यानी लोन ये आप 20 इयर्स तक ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. मैक्सिमम लोन अमाउंट 60% ऑफ द वैल्यू. The maximum loan amount is rupees 1 crore along with interest. आपका जो वैल्यू, प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसका 60% ही आपको लोन मिलेगा, एंड मैक्सिमम लोन का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ है along with the interest. उतना ही लोन मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता. इंटरेस्ट रेट नॉर्मली ये डिफर करता है बैंक टू बैंक, बट होम लोन का जो इंटरेस्ट है उससे 1 और 2% इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा ही होता है. डिसबर्समेंट, जो पेमेंट होता है बोरोवर को, वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, लमसम यानी एक साथ भी मिल सकता है, बट लमसम में थोड़ा कंडीशन है. मैक्सिमम मंथली पेमेंट कितना कर सकते हैं? लेंडर्स प्रीफर टू कैप मैक्सिमम मंथली पेमेंट एट ₹50,000. नॉर्मली जो भी लेंडर्स होते हैं वो 50,000 तक का कैप रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं पेमेंट कर दे मंथली पेमेंट. However, this amount can vary from lender to lender, but ये अमाउंट lender to lender वेरी करता है. मैक्सिमम लंप सम पेमेंट कितना है? The maximum lump sum payment shall be restricted to 50% of the total eligible amount of loan, subject to a cap of 15 lakh, to be used for medical treatment for self, spouse and dependents if any. आपका जो टोटल लोन है उसका 50% तक आपको लंप सम पेमेंट कर सकता है, बट वहां पे भी कैप 15 लाख है. 15 लाख से ज्यादा आपको कभी भी लंप सम पेमेंट नहीं मिलेगा, एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट इफ एनी. देन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, एवरी 5 इयर्स में इसका रिवैल्यूएशन होता है. से फॉर एग्जांपल आपने जब रिवर्स मॉर्गेज लोन दिया तब ये प्रॉपर्टी का वैल्यू था 1 करोड़, बट उसका वैल्यू आपका 5 इयर्स के बाद 2 करोड़ हो गया, तो आपका उस तरह से लोन अमाउंट भी बढ़ सकता है. तो एवरी 5 इयर्स में उसका रिवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया. अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है तो आपका लोन अमाउंट भी बढ़ सकता है,
और आपका मंथली जो पेमेंट है वो भी बढ़ सकता है। प्री पेमेंट अलाउड विदाउट एनी चार्जेस इन केस ऑफ ओन फंड्स, 2% फोरक्लोजर चार्जेस इन केस ऑफ बैंक ट्रांसफर। अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी अलाउड है। नाउ व्हाट आर दी फोरक्लोजर्स, यानी आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। For borrowers not staying at the property for a continuous period of 1 year, अगर बोरोवर 1 साल से ज्यादा उस प्रॉपर्टी में रहता नहीं है तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। उसका ये लोन जो अमाउंट है वो बंद हो सकता है मंथली पेमेंट। If the borrower fails to pay property taxes or maintain and repair the residential property or fails to keep the home insured, अगर प्रॉपर्टी का टैक्स पे नहीं करता, प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं करता, प्रॉपर्टी को बराबर रिपेयर नहीं करता और प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड नहीं करता, तो इस केस में उसका रिवर्स मॉर्गेज जो लोन चल रहा है वो बंद हो सकता है। तो ये फोरक्लोजर्स है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आपको फुलफिल करना है टू कंटिन्यू विद द लोन, अगर आप ये इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो आपका कंटिन्यूटी ऑफ द लोन मे कम्स इन डेंजर। इफ द बोरोवर डिक्लेयर्स बैंक्रप्सी, अगर बोरोवर डिक्लेयर बैंक्रप्सी नादार जाहिर हो जाता है तो भी उस केस में उसका लोन अमाउंट बंद हो सकता है। If the residential property so mortgage to the lender is donated or abandoned by the borrower, अगर ये प्रॉपर्टी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज किया है लेंडर के पास, वो प्रॉपर्टी को बोरोवर क्या कर देता है, डोनेट कर देता है या अबेंडन कर देता है, तो इस केस में भी ये आपको रिवर्स मॉर्गेज जो स्कीम का लोन है वो वापस देना पड़ेगा। Then if the borrower effect changes in the residential property that affect the security of the loan for the lender, for example renting out part or all of the house, adding a new owner of the property's title, changing the property's zoning classification, or creating further encumbrance on the property either by way of taking out new debt against it and alienating the interest by way of gift or will, अगर इसमें से कुछ भी काम करता है तो फिर उसका लोन बंद हो सकता है। नया ओनर को ऐड कर देता है या प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देता है या कोई जोन क्लासिफिकेशन गलत करता है या तो फिर प्रॉपर्टी को कोई चीज छुपा, एलिनिएटिंग मींस छुपा रहा है या कोई नया डेप्ट क्रिएट कर रहा है, तो इस तरह से कुछ भी ऐसा कोई काम करता है जिसके प्रॉपर्टी का जो टाइटल है, जो प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी है वो डेंजर में आता है, तो इस केस में भी उसको लोन अमाउंट है, रिवर्स मॉर्गेज का जो लोन अमाउंट है वो वापस देना पड़ेगा, यानी बंद हो सकता है। बेनिफिट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलर इनकम मिलता है ये, नो डिपेंडेंस ऑन चिल्ड्रन और फैमिली फॉर बेसिक एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए चिल्ड्रन एंड फैमिली पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। एज अमेंडेड इन द यूनियन बजट 2008-9, पेमेंट रिसीव्ड अंडर रिवर्स मॉर्गेज लोन आर नॉट टैक्सेबल, ये पूरा का पूरा पेमेंट टैक्सेबल भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। बोरोवर एंड स्पाउस कैन ऑक्यूपाई द हाउस टिल डेट इवन इफ टेन्योर इज ओवर, जैसे 20 ईयर का लोन मिला था, 20 ईयर ओवर बट दे आर स्टिल अलाइव, तो इस केस में बैंक उनको रहने का पूरा जिम्मेदारी देती है कि आप रह सकते हो ये हाउस, बैंक उनको बोलेगी कि आप ये हाउस आपके रिमेनिंग एज ऑफ लाइफ रह सकते हो, बट खाली इतना है कि मंथली पेमेंट आपको बंद हो जाएगा उस टाइम पे, बट घर में से कोई निकालेगा नहीं, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। बट उस टाइम पे एक और प्रॉब्लम होता है कि जैसे एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपका बंद हो जाता है। देन लिमिटेशंस क्या है इसका, लिक्विडेशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिवर्स मॉर्गेज विल ड्रॉ डाउन ऑन इक्विटी ओवर टाइम, यहाँ पे एक सबसे बड़े लिमिटेशन है कि ये प्रॉपर्टी का आपका जो इक्विटी है, जो आपका ओनरशिप है ग्रेजुअली पेमेंट जैसे जैसे बैंक करती जाती है वो आपका प्रॉपर्टी का ओनरशिप धीरे धीरे कम होता जाता है और आपका प्रॉपर्टी लिक्विडेट होता जाता है, तो ये एक इसका लिमिटेशन है। नो पेमेंट आफ्टर लोन टेन्योर, लोन टेन्योर ओवर हो जाता है और उसके बाद अगर दे आर स्टिल अलाइव तो वहां पे उसको पेमेंट नहीं मिलता और उस टाइम पे उनका जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो जाता है। अगर उस टाइम पे कोई मेडिकल इमरजेंसीज आया तो वो मिलेगा नहीं उनको, ऐसा कोई भी पैसा मिलने वाला नहीं है, तो इस तरह से नो पेमेंट आफ्टर लोन टेन्योर भी ये एक बहुत बड़ा इसका लिमिटेशन है। रिसेंटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कई बार चिल्ड्रन को भी रिसेंटमेंट होता है कि
they do not get anything from their parents. So these are the limitations of the reverse mortgage scheme. I hope you understand the concept clearly, but if you still have any doubt, you can comment. I will try to reply those comments